Hello students, welcome to Educate. Today we'll be moving on with the third part of the sixth chapter of your class 12th NCERT history और इस चैप्टर का नाम था भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। अब तक हमने डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ रिफॉर्मेशन विद इन द हिंदू फोल्ड एंड एट द सेम टाइम सूफीज और सूफी रिलीजन, सूफी रिफॉर्मेशन विच वाज हैपनिंग विद इन द इस्लामिक फोल्ड, उसके बारे में हमने पढ़ा था। नाउ we'll be looking at मुगल प्रिंसेस जहानारा का जो एक विजिट था, जब उन्होंने विजिट किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको मुनीस अल अरवा द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स का टाइटल दिया गया था, उस दरगाह पे वो गई थी। तो इसमें वो लिखती हैं, आफ्टर प्रेजिंग द वन गॉड द लोली फकीरा humbled soul जहानारा went from the capital Agra in the company of my great-grandfather, Emperor Shah Jahan, towards the pure region of the incomparable Ajmer. I was committed to this idea that every day in every station I would perform 2 cycles of optional prayer. For several days I did not sleep on leopard skin at night. I did not extend my feet into the direction of the blessed sanctuary of the revered saving master, and I did not turn my back towards him. I passed the days beneath the trees. On Thursday, the 4th of the blessed month of Ramzan, I attained happiness of pilgrimage to the illuminated, and the perfumed tomb. With an hour of daylight remaining, I went to the holy sanctuary, rubbed my pale face with the dust of that threshold. From the doorway to the blessed tomb, I went barefoot. Kissing the ground, having entered the dome, I went around the light-filled tomb of my master 7 times, और finally वो excuse me, उन्होंने अपने हाथों से जो फाइनेस्ट क्वालिटी था इत्र का वो टूम पे लगाया, वर्शिप करी, सर झुकाया, all that. Moving on, the lamp of the entire land. अब हर एक सूफी श्राइन की एक डिस्टिंक्टिव फीचर होती थी। वो कैसे? This is what an 18th century visitor from Deccan Dargah, Kuli Khan, wrote about the shrine of Nasiruddin Chiragi Delhi in his Murakka Delhi album of Delhi, जिसे कहा गया है, The Sheikh in the grave is not the lamp of Delhi, but the entire country. People turn up there in crowds, particularly on Sunday. In the month of Diwali, the entire population of Delhi visits it and stays in the tents around the spring tank for days. They take baths to obtain cures from chronic diseases. Muslims and Hindus pay visits in the same spirit. From morning till evening, people come and also make themselves busy in the merrymaking in the shade of the trees. All right, तो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम अपने रिस्पेक्टिव त्योहारों पे बहुत ज़्यादा विजिट किया करते थे इन दरगाहों को। ऑल्सो पार्ट ऑफ जियारत वॉज द यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस, मिस्टिकल चांट्स, जो कि काफ़ी सारे म्यूजिशियंस या फिर कवाल होते थे, कवालियाँ गाते थे, एंड टू एवोक डिवाइन एक्सटेसी। जो सूफी थे वो गॉड को ऐसा मानते थे कि उसका जिक्र करने से ही डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। जिक्र मतलब टेकिंग द डिवाइन नेम, एंड इन द प्रेजेंस थ्रू समा ऑडिशन, जो एक जगह होती थी वहां पे, और वहां पे मिस्टिकल म्यूजिक वो गाते थे, उस पर परफॉर्म करते थे, एंड दे यूज्ड टू रिमेंबर गॉड थ्रू लव, आर्ट, डांसिंग, म्यूजिक, पोएट्री एटसेट्रा। ऑल्सो समा वॉज इंटीग्रल टू द चिश्तीज, और वो एग्जेम्प्लीफाई करता था इंटरैक्शन with the local indigenous culture. Moving on, कवाली एट द दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया, उसकी एक पिक्चर यहाँ देखने को मिलती है। लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशंस, जो समा था उसमें चिश्तीज काफी सारी लोकल लैंग्वेजेस इनकलकेट किया करते थे। दिल्ली में ये एसोसिएट करी जाती थी विद द सिलसिला विच वाज कन्वर्स्ड इन हिंदवी, विच वाज द लैंग्वेज ऑफ द लोकल पीपल। काफी सारे सूफीज जैसे कि बाबा फरीद composed verses in the local language which were incorporated in the Guru Granth Sahib later as well.
Yet others composed long poems or manasvis to express ideas of divine love using human love as an allegory. मतलब जैसे ह्यूमंस का लव होता है ठीक उसी तरीके से कम्युनिकेट करना विद गॉड. फॉर एग्जाम्पल द प्रेम अखियां लव स्टोरी पद्मावत composed by Malik Muhammad Jayasi revolved around the romance of Padmini and Ratan Sen, the king of Chittor. Their trials were symbolic of the soul's journey to the divine. Such poetic compositions were often recited in hospices, usually during summer. So basically, human love का जो इमोशन है उसी का एक रिफ्लेक्शन माना जाता था और a way to communicate with the divine being or God that they believed in. एक डिफरेंट जॉनरा भी था सूफी पोएट्री का जिसको कंपोज किया गया था बीजापुर यानी कि कर्नाटका के आसपास. और ये शॉर्ट पोएम्स थी दक्खनी में जिसे एक उर्दू का वेरिएंट कहा गया है एंड एट्रीब्यूटेड टू द चिश्तीज हु लिव्ड in this region during the 17th and 18th centuries. These poems were probably sung by women while performing household chores like grinding grain and spinning. All right. ये जो दक्खनी में लिखे हुए प्रेजेस होते थे, सूफी पोएट्री होती थी, ये हाउस होल्ड में जगह जगह गाते थे और इसको सेलिब्रेट भी किया करते थे. Other compositions were in the form of लुरिनाम और ललाबाइज एंड शादीनाम और वेडिंग सॉन्ग्स. यहां तक भी सूफिज्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है. इट इज लाइकली दैट द सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन ऑफ द कन्नड़ वच्चनाज ऑफ द लिंगायत्स एंड द मराठी अभंग्स ऑफ द सन्स ऑफ पंढारपुर. इट इज थ्रू दिस मीडियम दैट इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस in the villages of the Deccan. All right. आमिर खुसरो and the call. आमिर खुसरो जो कि 13th सेंचुरी में थे, एक बहुत बड़े पोएट थे, इन म्यूजिशियन भी थे और डिसाइपल भी थे शेख निजामुद्दीन औलिया के. और he gave a unique form to the चिश्ती समा by introducing the call. अरबी में कॉल का मतलब होता है saying. A hymn sung in the opening or the closing of a qawwali. This was followed by Sufi poetry in Persian, Farsi, Hindvi or Urdu and sometimes using words from all of these languages. सारी भाषाओं को मिला करके भी यूज किया जाता था. Qawwals who sang these songs at the shrine of Sheikh Nizamuddin Aulia always start their recital with a call. Today, qawwali is performed in shrines all over the subcontinent. तो ये थी कव्वाली की हिस्ट्री. चरखानामा. अब चरखानामा मतलब चरखा चलाते हुए जो हाउस होल्ड चोर्स लेडीज किया करती थी. वहां तक भी सूफी पोएट्री एंड सूफी कल्चर का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है. मूविंग ऑन, सूफीज एंड द स्टेट. पॉलिटिक्स में इनका रोल क्या था? एक बहुत बड़ा फीचर सूफी ट्रेडिशन का था ऑस्टेरिटी और डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, संन्यास लेना, दुनियादारी से दूर रहना. However, this was by no means possible in the situation of the absolute isolation from political power. अब पॉलिटिक्स से इतना भी दूर नहीं रह सकते थे बिकॉज इनके फॉलोअर्स खूब ज्यादा थे और वो स्टेट और गवर्निंग को भी इफेक्ट करते थे. The Sufis accepted unsolicited grants and donations from the political elites. The sultans in turn set up charitable trusts or awqaf as endowments for hospices and granted tax free land या फिर इनाम ये भी दिया करते थे रूलर्स. चिश्तीज जो थे वो हर तरीके की डोनेशंस एक्सेप्ट करते थे, चाहे वो कैश में हो या फिर काइंड में हो. Rather than accumulate donations, they preferred to use these fully on immediate requirements such as food, clothes, living quarters and ritual necessities such as sama. अब ये सारी चीजें जो थी इसने मॉरल अथॉरिटी और जो फंक्शनिंग थी एक हॉस्पिस की उसको और ज्यादा पकड़ करके रखा और ज्यादा इंप्रूव भी किया. Which in turn attracted people from all walks of life. आगे जाकर के जो उनकी स्कॉलरशिप थी,
पेटी थी जो बेसिकली जिससे लोग अट्रैक्ट होते थे एंड एट द सेम टाइम उनके फॉलोअर्स थे। इससे जो उनका बिलीफ सिस्टम था वो और ज्यादा स्ट्रांग होता गया इन देयर रिस्पेक्टिव पीर और शेख, एंड मासेस में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। और जो किंग्स होते थे वो उनके एंड बेसिकली हु सपोर्ट किंग्स विश टू सिक्योर, क्योंकि मासेस का उनके पास एक तरीके से को रिलीजियस फिगर थे, किंग तो फिर भी एक पॉलिटिकल फिगर है। सो दैट इज व्हाई दे वेंट हैंड इन हैंड। इवन द किंग्स देमसेल्व्स दे यूज्ड टू गो टू द हॉस्पिसेस और दरगाह ताकि वो मिरेकल्स करवा पाएं और अपने लिए हेल्प करवा पाएं विद द हेल्प ऑफ द सूफी सेंट्स। ऑल राइट, however kings did not simply need to demonstrate their association with Sufis, वो कभी कभी लेजिटिमेशन भी उनसे मांगते थे। जैसे कि जब टर्क्स आए थे दिल्ली में और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को सेटअप किया था, तब जो उलेमा थी उन्होंने शरिया इम्पोज करना शुरू किया था। अब ये सारी एक्टिविटीज शरिया और या फिर इस्लामिक कोडिफाइड लॉ के अगेंस्ट थी, क्योंकि वो एंटिसिपेशन में जी रहे थे, एक बहुत ज्यादा डर में थे कि जो ऑपोजिशन थी बेसिकली फ्रॉम द सब्जेक्ट्स वो देखने को मिलेगी जो कि ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स थे। द सुल्तान्स मेजॉरिटी ऑफ whom were non-Muslims then sought out to the Sufis who derived their authority directly from God and did not need to depend on jurists to interpret the Sharia. एक तरीके से भगवान का दर्जा उन्हें मिला हुआ था, somewhat like a god figure or a god man. So that is why उनको जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें कुरान इंटरप्रेट करके बताए, and because they could perform miracles, and क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत टर्क्स ने एस्टैब्लिश करी थी तो लोकल पॉपुलेशन हिंदू थी, उनको कंसोलिडेट करने के लिए सूफीज की बहुत ज्यादा हेल्प भी ली गई थी। However, there were instances of conflict between the sultans and the Sufis. कभी कभी अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने के लिए जो रिचुअल्स थे दोनों पार्टीज कंडक्ट करवाते थे, जैसे कि प्रोस्ट्रेशन एंड द किसिंग ऑफ द फीट, की कौन कैसे एक दूसरे को ग्रीट करेगा। ओकेजनली द सूफी शेख वाज एड्रेस्ड विद हाई साउंडिंग टाइटल्स, जैसे कि निजामुद्दीन औलिया के जो डिसाइपल्स थे वो उन्हें सुल्तान उल मशेख, जिसका लिटरल मीनिंग होता है द सुल्तान अमंगस्ट शेख्स, तो ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे जिससे कभी कभी रिफ्ट देखने को मिलती थी बिटवीन द रूलर्स एंड द सेंट्स। अब सूफीज एंड द स्टेट और द पॉलिटिकल पावर एट दैट टाइम, कुछ सूफीज थे जैसे कि सोहरावर्दी के अंडर थे दिल्ली सुल्तान्स, और जो नक्शबंदी में थे मुगल्स के अंडर, वो भी एसोसिएटेड थे स्टेट्स के साथ। However, the modes of their association were not the same as those of the Chishtis. In some cases, Sufis accepted courtly offices. कभी कभी कुछ एक आध सूफी सेंट होते थे, वो कोर्ट में कोई ना कोई पोजीशन एक्सेप्ट कर लेते थे। So here is a picture of Dargah Sheikh Salim Chishti, the direct descendant of Baba Farid, Fatehpur Sikri में। Declining a royal gift, ये एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम द टेक्स्ट जो कि डिस्क्राइब करता है शेख निजामुद्दीन औलिया का हॉस्पाइस। और उन्होंने एक प्रोसीडिंग में कहा था कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया की के कोर्ट में प्रैक्टिस थी उनके फीट किस करने की, तो एट द टाइम लोकल रूलर सेंट हिम द डीड ऑफ ओनरशिप और टू 2 gardens and much land along with the provisions and tools for their maintenance. The ruler also made it clear that he was relinquishing all his rights to both the gardens and the land. तो ये एक डिस्कशन है about then the appropriate story. Sultan Ghiyasuddin was at that time was still known as उलुग खान। वो शेख फरीदुद्दीन के पास आए, उन्हें पैसा और ओनरशिप ग्रांट करी, और कभी कभी वो इस ऑफर को डिक्लाइन भी कर देते थे जो सूफी सेंट्स होते थे। Moving on, new devotional paths and dialogue and descent in North India.
यहाँ पे हम देखेंगे काफी सारे पोएट सेंट्स एंगेज करते थे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डायलॉग्स में, और काफी सारे नए सोशल सिचुएशंस, आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस की भी ग्रोथ इस टाइम पे देखने को मिली, which we will discuss in part 4 of the same chapter, Bhakti Sufi Traditions. I hope you have understood the timeline, the concepts, and the emergence or the principles of these new reformists between the two, within the two cultures, Hindu or Muslim. And please make sure to like, share, subscribe, and comment to the channel. And we'll continue this chapter further. Thank you, Team Educate.